Hello students, my name is Dr. Ritu Sharma from School of Education, Department of B.Ed. Today I will make you learn something more about drug addiction from the paper Childhood and Growing Up, Module 3. Last time we have discussed about drug addiction, what is drug addiction and what are the types of drugs which is taken by the adolescents and the people. Those people get affected, badly affected, their condition get worse by taking those drugs. So we have discussed about types of drugs and the characteristics of a drug addict person. Today I'll add some more to the lecture, drug addiction. First I will discuss So addiction is a specific biological mechanism that locks the body into an invariant pattern of behavior, one marked by superordinate craving and traumatic withdrawal when the given drug is not available. So as I have told you last time also that a drug, natural or chemical, if given to someone and at certain point of time, if that drug is not available, if that drug is not given to someone, then the condition of that person will be worst. A very different pattern, unusual pattern is seen in that person, and moreover the withdrawal symptoms, which is very harmful for the person, is seen when the available drug is not given. So now I will discuss what are the causes of drug addiction. Certainly, what are the factors? In other things, the factors are always number of factors, sometimes genetic factor also, hereditary factor also, but in case of drug addiction, the factor is non-biological. It has nothing to do with biology of a person or heredity or genetics. It has nothing to do with it. It is circumstantial factors that affect person to become drug addict. Causes. So the main is medical addict. Psychoneurotic addict. So these are the three causes: medical addict,
psychoneurotic addict and psychiatric cause. So medical addict is, as we know that there are many medicines which are given to person as a life-saving drug, but certain prescribed amount is only beneficial to the person. If the amount is exceed then more than what is required, the person will become addict to it. Very lively example is that cough syrup and many medicines which are given for pain reliever medicines, and this anesthesia medicines. These are all medical medicines which are given in and is a life-saving drug, but it in long term it has a very harmful effect on a person, like acetaminophen and pain relieving drugs. All these drugs, when given after certain period of time, the person will become addict, and it will have a very harmful effect on his health and personality. Psychoneurotic drugs are like drugs which are given to a person when he is under stress or tension, and he want to, and if a doctor want to relieve him from his pain, like painkillers, camphor, tranquilizers, all are medicines given under those who are going through psychoneurotic treatment. And then that person, if takes medicine for a longer period of time, he or she will become addict of it. And psychiatric causes means if a person is going through depression or any psychosis problem or any mental problem, those drugs if are given, then for a limited period of time, then it is all right. But if the time exceed, or if the person even require medicine for the longer period of time due to his mental condition, he will become addict of it. बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं जबकि वो एक डिप्रेशन को या जो भी मेंटल हेल्थ को वो एक रिलीफ तो पहुंचाते हैं, उनको आराम तो मिलता है, लेकिन वो उन ड्रग्स के आदी हो जाते हैं, वो बिना उन ड्रग्स के नहीं रह पाते, या जो उनका एग्रेसिव सिम्टम है बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा विड्रॉल सिम्टम दिखाने लगते हैं, किसी भी तरीके का कोई साइन नहीं दिखाते हैं, तो वो सारा इसी वजह से है क्योंकि वो उस ड्रग के एडिक्ट हो गए हैं और वो ड्रग उनको प्रॉपर मात्रा में नहीं प्रोवाइड की जा रही है, और इसी वजह से वो जो ये वाला लास्ट वाला साइकेट्रिक कॉज है उस श्रेणी में आ रहे हैं कि वो इस वजह से वो ड्रग एडिक्ट हो गए हैं। सो ये जो 3 कॉजेज हैं ये सारे मेडिकल कॉजेज हैं जिसकी वजह से ये ड्रग एडिक्शन हो जाता है। देयर आर अदर कॉजेज ऑल्सो विच कम्स अंडर स्पेसिफिक कॉज। तो जो बहुत सारे स्पेसिफिक कॉज भी हैं विच आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग एडिक्शन। तो एक बहुत सबसे ज़्यादा जो देखा गया है, जो बहुत ज़्यादा लोगों को अफेक्ट कर रहा है, तो दीज आर द थिंग्स कैन नॉट बी अवॉइडेड, क्योंकि ये चीज़ तो एक मेडिकली पर्सन के को प्रोवाइड की जा रही है, मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है उनकी कुछ न कुछ प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। बट जो स्पेसिफिक कॉजेज है, जैसे फर्स्ट कॉज है जैसे कि कल्चरल कॉज, किसी किसी के कल्चर में ही होता है वो ड्रग्स लेना। ये ड्रग्स का आना कैसे शुरू हुआ, जैसे ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने ओपियम की खेती करा दी, और जो गांजा जिसको हम लोग कहते हैं चरस, गांजा की खेती होने लगी बाकायदे, और उसको वो लोग अपने मतलब अपने प्लेजर के लिए लिया करते थे, वो अपना वो अच्छा महसूस करते थे, और इसी तरीके से वो कल्चर में आ गया। वो लोग जहाँ जो लोग उसको उगाते थे वो लोग भी उसको लेने लगे, उसको बुरा नहीं माना जाने लगा, उनके कल्चर में था। वो लेते हैं, उनके बच्चे लेते हैं, उनके जो बड़े बुजुर्ग घर के वो लेते हैं, तो वो उनके कल्चर में था वो लेना। जैसे हम लोग हुक्का कहते हैं,
हुक्का भी एक तरह का इंटॉक्सिकेंट है और एक तरह का ड्रग है कि वो जैसे नेचुरल ड्रग एंड केमिकल ड्रग है, उसी तरह से वो एक तरह का ड्रग है कि उसकी भी आदत पड़ जाती है ड्रग लेने की, या सिगरेट है उसकी, वो उसी तरह का एक फॉर्म होता है और उसको लेने की आदत पड़ जाती है। तो वो एक कल्चरल कॉज में आ गया कि वहाँ सब लोग लेते हैं, मतलब चाहे लेडीज हो, जेंट्स हो, और जो एल्डर्स ऑफ द फैमिली है वो सब ले रहे हैं। इट इज नॉट कंसिडर्ड एज समथिंग हार्मफुल और समथिंग बैड, उसको कुछ भी ऐसा नहीं कहा जा रहा है। अनदर इज सोशल कॉज। आजकल बहुत ज्यादा देखा जा रहा है कि पीयर प्रेशर इतना है एडोलेसेंस पे दैट to maintain their position or to show off themselves that they are not less than others, they start smoking। और स्मोकिंग शुरू होता है या बियर से शुरू होता है या विस्की या जो भी इस तरह के हार्ड ड्रिंक्स है उससे शुरू होता है। तो वो एक सोशल हो गया कि, और एक और बात है जब पार्टीज में जाते हैं तो वहाँ पे हार्ड ड्रिंक्स चल रहा है और कोई सॉफ्ट ड्रिंक के लिए कहता है, इफ एनीवन आस्क फॉर सॉफ्ट ड्रिंक देन इट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी मिडिल क्लास और डाउन क्लास। सो इट इज कंसिडर्ड दैट ड्रिंक whiskey or other intoxicant is considered as a high class drink. So they also, those who are not taking, they also take it because of the pressure of the society, and it has a ill effect on them. So social cause भी है, and social cause में जो सबसे ज़्यादा most of the जो targeted जो उसके age group है वो है जो अडोलेसेंस होता है। वैसे भी अडोलेसेंस की एज को इम्पल्सिव एज कही गई है, बहुत उत्तेजित जो है उम्र कही गई है, जिसमें हर चीज को जानने जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है, हर चीज को जानना, हर चीज को टेस्ट करना, हर चीज को एक एक्सपेरिमेंट करने की एक जो चाह होती है, वो भी इस तरह का कॉज में आती है कि वो सिगरेट को ट्राई करना चाहते हैं, या हुक्के बाज बहुत ज़्यादा अब बहुत फैशन में है और उसमें भी अपने आप को इंडल्ज करते हैं, एंड ड्रिंक्स ऑफ कोर्स। फिर धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते ड्रग्स या और जो जितने भी तरीके के पॉइजनस या जिसको हम डेंजरस फॉर लाइफ कहते हैं वो सारी चीज़ें भी लेने लगते हैं। तो सोशल प्रेशर बहुत होता है, अगर टीनेजर्स में है तो वो बड़े लोगों में भी, अडल्ट्स में भी पाया जाता है। व्हेन दे मूव इन सोसाइटी दिस इज कंसिडर्ड अंडर फैशन टू टेक ड्रग। Other is situational cause. You know, if a person is of weak personality and if any event in his life is affecting him abnormally, अगर उसका जॉब लूज कर दिया है उसने, या ब्रोकन फैमिली है, या उसका किसी फेलियर है एग्जामिनेशन में, या किसी कोई ब्रोकन रिलेशनशिप से गुजर रहा है, तो वो सोचता है कि मैं, जैसे मूवीज में स्पेशली कहाँ से स्टार्ट हुआ है ये मूवी, मीडिया भी इसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रही है ड्रग्स का, कि वो कैसे बहुत पुराने से चला रहा है। इट इज़ नॉट इन मॉडर्न टाइम्स, बहुत जो पुरानी मूवीज भी हैं, ओल्ड मूवीज में, उसमें भी दिखाया जाता है कि वो बहुत आराम से सब पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं। तो वो उन्होंने ड्रिंक की और फिर वो बिल्कुल एकदम नशे में हो गए और वो सब भूल गए कि क्या दुख दर्द था, या इसको पियो और सब दर्द भूल जाओ। ये एक ऐसा डायलॉग है जो बहुत सारी मूवीज में हमें मैक्सिमम सुनने को मिलेगा कि इसको पियो और अपना दर्द भूल जाओ। तो वो एक जो खास तौर से जो अडल्ट्स हैं और जो मिड 20-30s के बीच में जो अडल्ट्स हैं, वो ये बात सोचते हैं कि अगर वो किसी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और अगर प्रोफेशनली पर्सनली, तो वो ड्रिंक करेंगे तो वो उससे हट जाए, मतलब उसको ओवरकम कर सकेंगे। वो ओवरकम नहीं कर सकेंगे, देयर माइंड बिकम नम, वो कुछ सोच नहीं सकते हैं। जब वो उनके अंदर इंटॉक्सिकेंट चला गया है तो वो ऐसा नहीं है कि उसको ओवरकम या उस परिस्थिति से उबर पा रहे हैं, वो उबर नहीं पा रहे हैं, बल्कि उनका जो दिमाग है वो थोड़ी देर के लिए नम हो जाता है और वो कुछ सोचने समझने की शक्ति उनमें नहीं रहती है। तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ, हम ओवरकम कर गए, और वो बार बार वो इसके एक तरह के स्केपिस्ट एटीट्यूड होता है और वो बार बार उसको लेते हैं ताकि वो कुछ सोचे समझे ना और वो टाइम गुजर जाए। वो एक तरह का स्केपिस्ट एटीट्यूड होता है, एंड स्पेशली
वो एक जो वीक पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं उनमें देखा जाता है कि वो ओवरकम नहीं कर पा रहे और वो इस तरह से कोई भी ड्रिंक या कोई भी ऐसा ले रहे हैं इंटॉक्सिकेंट जिससे वो थोड़ी देर के लिए उनको नशे की आदत हो रही है और वो अब सोच रहे हैं कि हम उस चीज़ से ओवरकम कर गए हैं। दूसरी एक और जो बात है कि जैसे जो ड्रग्स ऐसे होते हैं जैसे जिनको हम लोग मैरिजुआना या जिसको हम ब्राउन शुगर कहते हैं, वो भी एक इस तरह का है। उसके भी ट्रैप में लोग इसी तरह से फंस जाते हैं यंगस्टर्स कि उनको समझाते हैं लोग कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्लेजर महसूस होता है और वो उस तरह से उसको लेके और फिर ये मेडिकल साइंस ने प्रूवन फैक्ट है कि अगर हमने 3 बार कोई इस तरह का ड्रग ले लिया है तो वो फिर हम उसके एडिक्ट हो जाते हैं। कि अगर हमने एक क्वांटिटी में किसी ड्रग को हमने 3 टाइम्स कॉन्जिक्यूटिवली ले लिया है, 1 दिन 2 दिन छोड़कर, या कभी भी हमने 3 बार लिया है, तो हमारा फिर जैसे जो क्रेविंग वाली बात मैंने जो यहाँ पे कही है ना, सुपर ऑर्डिनेट क्रेविंग, वो सुपर ऑर्डिनेट क्रेविंग हो जाती है जो किसी भी और चीज से उसको हम कम नहीं कर सकते हैं। फिर हमको वही चीज चाहिए, जो वही वाला ड्रग चाहिए जिसने हमको उतना जैसे कहते हैं कि वो पीस ऑफ माइंड मिला या प्लेजर महसूस हुआ, वो वाला चीज फिर चाहिए होती है अगर हमने किसी भी ड्रग को 3 टाइम्स ले लिया। तो अगर वो यंगस्टर्स किसी पार्टी में गए हैं और इस तरह से अगर किसी को दे दिया गया है और उसका प्रभाव उनके शरीर पर दिखा तो फिर वो उसके एडिक्ट हो गए। और ये this whole drug addiction is very nearly related to terrorism, बहुत ही पास है। क्योंकि अगर एक मिडिल क्लास है या एक सर्विस क्लास है या एक स्टूडेंट है, उसके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, अगर उसने ड्रग लेना शुरू किया तो उसका सेकेंड स्टेज क्या होगा? स्टीलिंग, यही होगा ना, रॉबरी, इन्हीं सब चीज पे वो आ जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा और उसको वो क्रेव हो रही है तो वो कुछ ना कुछ ऐसे भी इलीगल, कोई भी अनलॉफुल एक्ट करने लगेगा जिससे कि वो एक जो हम लोग ने लास्ट टाइम पढ़ा था जुवेनाइल डेलिक्वेंट, वो वाली कंडीशन तक पहुंच जाएगा। वो रॉबरी करने लगेगा, वो स्टीलिंग करने लगेगा, वो ड्रग के लिए पैसा इकट्ठा करने लगेगा और फिर एक तरीके का जो एंटी सोशल एलिमेंट जिसे हम कहते हैं वो उस वाले उसमें आ जाएगा, फॉर्म में आ जाएगा। So 3 things we have discussed: cultural cause, social cause, situational cause, and one more, for फिजिकल डेवलपमेंट। ये एक बहुत वेरी प्रेवलेंट दीज डेज। जितने भी जिम्स हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इन जिम्स इट इज सीन दैट फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज सीन दैट इन जिम्स, बहुत सारे जो जिम ट्रेनर्स होते हैं वो बिल्कुल मस्कुलर होते हैं, बड़े लंबे चौड़े होते हैं। तो जितने यंगस्टर्स वहाँ पे जिम करने जाते हैं वो भी वैसे ही सोचते हैं कि हम भी ऐसे ही बन जाएं और तमाम तरीके के ड्रग्स, स्टेरॉइड उनको दिए जाने लगते हैं या वो कहते हैं कि हमें भी आपके जैसा बनना है। तो वो डाइट की जगह वो तमाम तरीके के पाउडर, प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन वे पाउडर, वो सब चीज़ें और कभी कभी स्टेरॉइड या किसी तरीके का और भी ड्रग दिया जाता है जिससे जो उनकी बॉडी है वो ग्रो करे और उनका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा हो। वो केवल शॉर्ट टाइम्ड होता है, उसका बहुत ही शॉर्ट पीरियड होता है। इट हैज़ ए वेरी इल इफेक्ट ऑन बॉडी। लिवर पे उसका फर्क पड़ता है, उसका डेवलपमेंट में फर्क पड़ता है, बोन्स पर फर्क पड़ता है और बहुत सारी ऐसी इंटरनल प्रॉब्लम हो जाती हैं जो बाद में किसी भी दवा से ठीक नहीं होती हैं। और जो एथलीट्स होते हैं वो अपना पावर बढ़ाने के लिए दौड़ का वो सब ड्रग्स लेते हैं। तो ये भी एक बहुत आजकल जो स्पेशली देखा गया है वो ये फिजिकल या डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है इन सोसाइटी की। जो जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी टीनेजर्स हैं जो ज्वाइन करते हैं जिम, वो ज़रूर इस बात के लिए कहते हैं कि हम प्रोटीन ड्रिंक लेना चाहते हैं जिससे हमारी बॉडी भी ट्रेनर्स की तरह हो जाए और हम भी उनकी तरह मसल्स वाले हो जाएं। तो ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ ड्रग एडिक्शन। ये नहीं पता चल पाता है कि इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन पाउडर और इन द फॉर्म ऑफ मल्टीविटामिन पिल्स व्हाट दे आर टेकिंग। सो देयर आर 5 causes that I have discussed today.
medical causes, in which these three comes: medical addict, psychoneurotic addict, and psychiatric cause. And in specific causes, there are four causes: cultural cause, social cause, situational cause, and physical development. So ये सारी चीज़ें तो हमने जानी कि what is drug addiction, what are the types of drugs, and what are the characteristics of addicted person, and what are the causes. Now I will tell you what are the teaching skills. Once it is find out by the family that my child is suffering from drug addiction, so the very first step that is taken by the family is that to take him or her to the doctor for treatment, and then for the rehabilitation center. And after rehabilitation center, if there are some stages also. There are some stages like assertive stage, aggressive stage. So if according to the person's stage, the treatment is given. But once it is found that a person is ready to take the treatment, there are certain teaching skills which are given to the person. So first teaching skill is life skill training. In life skill training, the first and foremost thing which is taught to a child is that to tell this drug is very harmful for you, and what is the relevance of his life in society and for the फैमिली, वो कितना इम्पोर्टेंस रखता है सोसाइटी के लिए और फैमिली के लिए, और जो आप उसको कैसे अपने रूटीन की लाइफ फिर से पहले की तरह स्टार्ट करनी है, हेल्दी फूड हैबिट होनी चाहिए, हेल्दी एक्सरसाइज होनी चाहिए, और वो किस तरीके से अगर दोबारा उसको कोई इस तरह से देने की कोशिश करे ड्रग या उस ट्रैप में फिर से उसको डालने की कोशिश करे, तो वो कैसे अपने आप को कंट्रोल करे, वो सारी लाइफ स्किल ट्रेनिंग उसको दी जाती है सेशंस के थ्रू. Develop sense of worth. सबसे पहले तो उसमें एक कॉन्फिडेंस डेवलप करना है कि वो कितना इम्पोर्टेंट है, उसकी कितनी वर्थ है, और वो जो उसका जो उसकी स्टीम है, जो लो स्टीम है, उसको हाई करना, उसको उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप करना कि नाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम एवरीथिंग विल बी ऑल राइट एंड ही विल बी अगेन लाइक अ नॉर्मल पर्सन एज बिफोर, और वो हर चीज़ वैसे कर पाएगा जैसे और स्टूडेंट्स कर रहे हैं. वो अपने सारे जो एक्टिविटीज़ हैं, जो एक्सरसाइज है, जैसे जब वीक हो जाती है बॉडी तो उसको एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम आ रही है या कहीं कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सारी चीज़ें उसकी ठीक होंगी. उसको उसका इम्पोर्टेंस जताना, और जो मैं एक हर बार बोलती हूँ वाव वाली बात ज़रूर कहनी है, जो मैं हर अपने लेक्चर में बताती हूँ कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी चाइल्ड. वाओ, दैट इज वर्दी, ओरिजिनल एंड वेलकम. वो वाली फीलिंग उसमें फिर से डेवलप करनी है कि वट एवर यू आर वेलकम इन आवर लाइफ. वट एवर यू डू, इट इज वर्दी टू ऑल ऑफ अस. सो वो वाली सेंस ऑफ फीलिंग उसमें डेवलप करनी है. Next is teacher should be non-judgmental and non-threatening. बहुत ही अनबाइस्ड तरीके से टीचर को क्लास में अपने स्टूडेंट्स पर, उन स्टूडेंट्स पर स्पेशली जो जिनको ये ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उनके साथ बिहेवियर रखना है. नॉन जजमेंटल होना है, नॉन थ्रेटनिंग होना है. बार बार उनको इस बात का उनको थ्रेट नहीं करना है कि आई विल रिपोर्ट दिस मैटर टू योर फैमिली और टू योर पेरेंट्स और टू एवरीवन. इस तरीके का कभी भी उनको स्टेटमेंट नहीं बोलना है, बल्कि उनको इनकरेज करना है, मोटिवेट करना है कि वो सक्सेसफुल होंगे अपने इस मिशन में जो वो कर रहे हैं.
sympathetic and understanding attitude. सिंपैथेटिक एंड अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड होना चाहिए टीचर का, कि वो जो स्टूडेंट है वो अपनी सारी बात उससे कन्फाइड कर पाए, वो किसी को उसकी बात शेयर मत करें, और अंडरस्टैंडिंग हो, वो दर्द से गुजर रहा है, जिस पेन से ही इज गोइंग थ्रू, द टीचर शुड अंडरस्टैंड एंड काउंसिल student so that he will be able to cope up from the trauma from which he is going through. Next is small group teaching. Teaching should be in small group, क्योंकि अगर ग्रुप स्मॉल रहेगा तो इंडिविजुअल अटेंशन दिया जा सकता है और उसको सॉल्व भी किया जा सकता है। अगर ग्रुप बड़ा है तो इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दिया जाएगा, और अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो वो दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे। स्मॉल ग्रुप होना ताकि वो अच्छे से एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर पाए, उनसे फ्रेंडली रैपो बना पाए, और उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो आपस में ही सुलझ पाए। स्कूल्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये भी अगर कोई भी मैटर पता चलता है तो सबसे पहले होगा रिपोर्ट टू स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर टीचर के पास ऐसा स्टूडेंट है और उसको इस तरह का प्रॉब्लम दिखा है तो सबसे पहला होगा रिपोर्ट टू स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। एंड ऑन द सेम हैंड कॉल एम्बुलेंस। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ ड्रग। टाइप ऑफ ड्रग कौन सा है, अगर वो किसी तरह का ब्राउन शुगर जैसा है या ओपियम जैसा है या मेरिजुआना है या निकोटिन है, जो भी तरह का है वो पता होना चाहिए। या कहीं जिससे बेहोश करते हैं वही तो कुछ नहीं, एनेस्थीसिया का कोई चीज़ है, या क्लोरोफॉर्म ही तो नहीं है जिससे उसको इस तरह का इफेक्ट हुआ है। टाइप ऑफ ड्रग का पता करना है। एंड ऑन द सेम हैंड प्रोवाइड फर्स्ट एड। एम्बुलेंस आने में टाइम लगेगा, सो बिफोर द एम्बुलेंस कम कुछ फर्स्ट एड दिया जाना होगा, जैसे उसको ठंडे पानी की पट्टी रखना या वॉमिट कराने की कोशिश करना या इलेक्ट्रॉल देना, जिस तरह की उसकी कंडीशन है उस तरीके से उसको कुछ ना कुछ फर्स्ट एड देना। एंड टाइप ऑफ ड्रग के बाद इधर आ गया ओरिजिन और प्रोवाइडर। ये ड्रग उसको मिली कहाँ से, क्या वो स्कूल लेके आया था या स्कूल में किसी ने उसको दी, या उसके पास वो कहीं से कोई ऐसा सोर्स है, कोई ऐसा सब स्टाफ है जो उसको इस तरह का ड्रग प्रोवाइड कर रहा है, तो वो उसको कहाँ से आया और कैसे आया। ऑन द सेम हैंड मॉनिटर है फर्स्ट एड रूम। जो फर्स्ट एड उसको दी गई है उसका मॉनिटर करना कि उसका वो जो फर्स्ट एड का उसके ऊपर क्या कुछ असर हो रहा है या उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। अगर उसको कुछ रिलीफ मिल रहा है तो उसको थोड़ा और दिया जाए, और लग रहा है कि नहीं उसकी कंडीशन वर्स्ट हो रही है तो उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया जाए। दूसरी तरफ इन्फॉर्म फैमिली, उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करना।
and on the same hand inform पुलिस। ये सारी चीजें एक रोल ऑफ स्कूल और टीचर की है, बिसाइड्स टीचिंग स्किल, कि अगर कोई इस तरह का केस अगर देखने को मिलता है क्लास में या स्कूल में तो उसको किस तरह से हैंडल करना है। सबसे पहले स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को ये सारी बातें बतानी है, उसको एम्बुलेंस को कॉल करना है या डॉक्टर को कॉल करना है। देन कौन से ड्रग उसको मिला और कैसे मिला, कौन से ड्रग है और कैसे मिला, उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करना, प्रोवाइड फर्स्ट एड, मॉनिटर इन फर्स्ट एड रूम एंड इन्फॉर्म पुलिस। और फिर जो बाद में जब भी उसको रिलीफ मिल जाए तो फिर उसको किस तरीके से कैसे हैंडल करना है वो नेक्स्ट स्टेप होता है। Now I will tell you what are the policies given by the government for those who are going through some treatment, like for rehabilitation center or some treatment for drug addiction. So drug addiction policy, ड्रग अब्यूज सेंटर जो गवर्नमेंट की तरफ से 9th 5-year प्लान में था, जिसमें 9th 5-year प्लान में था, जिसमें था कि जो भी ड्रग अब्यूज सेंटर खुले हैं वो हर एक स्टेट में होंगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होंगे, एंड मोरओवर वहाँ पे सारे जो डॉक्टर्स हैं वो पूरे फुली क्वालिफाइड होंगे, साइकोलॉजिस्ट होंगे, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होंगे, साइकेट्रिस्ट होंगे, और वहाँ पे एक जो उनका ट्रीटमेंट दिया जाएगा वो भी अंडर कंट्रोल सिचुएशन में दिया जाएगा। वहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को केवल या लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को केवल जो है वो ट्रीटमेंट मिलेगा, वो रिहेबिलिटेशन ट्रीटमेंट मिलेगा। वहाँ पे रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी होगी। जिन पेशेंट की बहुत ज़्यादा हालत अच्छी नहीं है कि वो घर ले जाकर उनको ट्रीट किया जा सके या वो हर दिन आ पाए ट्रीटमेंट के लिए, उनके लिए वहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटी होगी या एक डॉर्मेट्री है जहाँ पे उनको रखा जाए और उनको रोज ट्रीटमेंट दिया जाए, उनके काउंसलर के द्वारा सेशन होंगे। सो जो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग अब्यूज सेंटर एस्टैब्लिश हुए, उसमें पहले तो साइकेट्रिस्ट, क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट है, उसके बाद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइको थेरेपेटिक काउंसलिंग उनको दी जाए, और काउंसलिंग सेशंस भी उनके चलाया जाए। सो जो ड्रग अब्यूज सेंटर है उसमें जो भी उनको फंड्स मिल रहे हैं और वो जो हर डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट में है उनमें ये सारी फैसिलिटीज़ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये सारी फैसिलिटीज़ हों और प्रॉपर काउंसलिंग उनको दी जाए, ताकि उसको जिस तरह की ज़रूरत है, अगर उसको मेडिकेशन की ज़रूरत है तो साइकेट्रिस्ट उससे डील करे। अगर देखा जा रहा है कि केवल विद द हेल्प ऑफ काउंसलिंग सेशन इट कैन बी डन तो वो दिया जाए, और अगर साइकोथेरेपेटिक काउंसलिंग दी जानी है तो वो दी जाए, और अगर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को उसमें इन्वॉल्व होना पड़े तो वो भी उसका प्रबंध कराया जाए। अगर वो कहीं दूर शहर में रहता है या दूर रहता है तो हॉस्टल की फैसिलिटी हो, उसके कंडीशन के हिसाब से उसको रहने की और खाने पीने की और जो भी और सुविधाएं वो दी जाएं। ये सारी पॉलिसी में है, 9th 5-year पॉलिसी प्लान में गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा सारा फंड भी दिया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें प्रॉपरली पूरी हो पाए, सक्सेसफुली हो पाए। और इन सब चीज़ों के बाद जो उनका ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि इनका जो ये प्रॉब्लम है ड्रग एडिक्शन की, इसको दूर की जा सके और उनमें एक तरीके का फिर से कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाए ताकि वो अपनी एक नॉर्मल पर्सन की तरह लाइफ बिता सकें। So today I have discussed
addiction and types of addiction and teaching skills and drug addiction policy. Little I would like to tell you about counseling session. Basic counseling principles. जो पहला फर्स्ट प्रिंसिपल है काउंसलिंग का है कॉन्फिडेंशियलिटी. If trust is not established between counselor and counseling, then the treatment will fail. So पहला ये पॉइंट होता है कि दोनों के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए ताकि उसको ये लगे कि बाय कन्वर्सेशन विल नॉट बी शेयर्ड एनीवेयर एल्स, और जो भी मैं कह रहा हूँ वो पूरा उसको कन्फाइड करेगा काउंसलर और किसी और को मेरी बात नहीं बताएगा. इट इज बिटवीन मी एंड द काउंसलर. Identify strength and weaknesses. सबसे पहला काउंसलर का एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ साथ वो वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट पहचाने अपने काउंसलिंग की, कि उसके क्या वीक पॉइंट्स हैं और क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कहाँ पर उसको किस बात से उसको या कौन सी ऐसी उससे प्रॉमिस कराया जा सकता है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो दोबारा से वो ड्रग लेने के लिए तैयार ना हो, और कौन सी ऐसी वीक मोमेंट्स हैं या कौन से ऐसे वीक इवेंट्स हैं या कौन सी ऐसी वीक बातें हैं जिससे वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा और वो ड्रग ले सकता है. तो ये दो चीज़ें उसके लिए जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. अगर वो ये दो चीज़ें जान जाते हैं तो उनका ट्रीटमेंट और उनका जो स्टेप वाइज जो काउंसलिंग है वो बहुत इजी हो जाती है. Disciplined routine observation. जब भी काउंसलर काउंसलिंग पास में बैठे तो वो काउंसलर को अपने काउंसलिंग को बहुत ही कीनली ऑब्जर्व करना है और हर दिन उसको ऑब्जर्व करके उसका एक चार्ट बनाना है कि वो फर्स्ट डे आया तो वो उसमें कैसे उसका बिहेवियर था, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उसका जेस्चर था, जो उसका कॉन्फिडेंस था, वे ऑफ स्पीकिंग था और कॉन्सेंट्रेशन था वो कैसा था, और फिर ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट उसमें कैसे हुआ. सेकेंड डे कैसा हुआ, वो क्या थोड़ा ओपन हो पाया या बहुत ही कॉन्फिडेंट हो पाया अपनी बात कहने में, और थर्ड डे कैसा था, फोर्थ डे कैसा था. तो जो भी काउंसलिंग के सेशन है उसमें बहुत ही डिसिप्लिन रूटीन ऑब्जर्वेशन होना चाहिए और उसका एक बहुत ही अच्छा सा चार्ट बनना होना चाहिए ताकि वो उसको उससे उसका एक तरीके का एनालिसिस हो सके कि वो किस तरीके से उसका उस पर जो ट्रीटमेंट का इफेक्ट है वो हो रहा है. पर्सनालिटी के बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जिससे उसको मेजर किया जा सकता है कि क्या क्या उसके वीक पॉइंट हैं और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और दूसरी बात उसका क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो भी चेक किया जा सकता है. सो पर्सनालिटी के जो टेस्ट हैं जो उससे संबंधित हैं, रिलेटेड है, जो उसकी उसको जानने में, उसकी पर्सनालिटी के बारे में जानने के लिए इम्पोर्टेंट है, वो टेस्ट उस पर करे जाए ताकि उससे और चीज़ों के बारे में पता चल पाए कि क्या ऐसे फैक्टर थे जिसकी वजह से उसने ड्रग एडिक्शन शुरू किया और कौन से ऐसे टर्निंग पॉइंट है जहाँ पर वो उनको छोड़ भी सकता है. Mutual support from the family.
जब काउंसलिंग होती है तो केवल एक स्टूडेंट की ही नहीं होती, काउंसलर का बहुत ही वाइड काम होता है कि वो केवल एक व्यक्ति की काउंसलिंग नहीं कर रहा है, वो इंडिविजुअल काउंसलर, बल्कि उसकी फैमिली को भी इन्वॉल्व करके काउंसलिंग कर रहा है, क्योंकि उसकी फैमिली को भी बहुत सपोर्टिव होना है, म्यूचुअल सपोर्ट मिलना है, उसकी मिलना चाहिए उसको उसकी फैमिली का। अगर कहीं उसको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो जो भी प्रोग्राम है वो अनसक्सेसफुल हो जाएगा। To bring the program on successful stage, it is very important that a person should get mutual understanding from family and from the counselor as well. So now I wind up my topic, drug addiction. This is the social cause which is killing the society in a very wide way, and from young to adult to adolescence, everyone is coming in this trap. So we have to work in this direction, counsel and advise, suggest and help person. If you find anyone, if in our class, if in our profession, if you find someone who is going through the situation, we should definitely help and speak to their parents, speak to their friends, that how to cope up or how to give them treatment. Thank you and best of luck.